Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Daddy by Sylvia Plath. This is included in a subject American Literature course code English 403 which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले सिल्विया प्लाथ की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. शी वॉज बोर्न ऑन 27th of October 1932 in Boston. Family background: Plath's father, Otto Plath, was a professor of biology and an authority on bees. He died when Sylvia was 8, an event that profoundly influenced her writing. Early talent: she demonstrated an early talent for writing, publishing her first poem at the age of 8. Education: she attended Smith College on a scholarship, excelling academically. Later received a Fulbright scholarship to study at Newnham College, Cambridge. Struggle with mental health: she struggled with depression throughout her life. Her first major breakdown occurred in college, leading to her hospitalization and treatment with electroconvulsive therapy. Early writing career: she published short stories and poems in various magazines including the Atlantic Monthly and Harper's. Marriage: she married poet Ted Hughes in 1956. They had 2 children. Next is literary style. She is known for her confessional style. Plath's work often explored the themes of mental illness, femininity, and existential struggle. Major works: her notable works include her poetry collections, The Colossus, 1960, and The Ariel, published posthumously in 1965, and her autobiographical novel The Bell Jar, 1963. Next is separation and hardships. She separated from Ted Hughes in 1962 due to his affair, which intensified her emotional struggles. Final years: she experienced severe depression exacerbated by harsh winter conditions and financial difficulties while living in London. Death: she died by suicide on 11th of February 1963 at the age of 30. Posthumous recognition: Plath's work gained significant acclaim. After her death, she was awarded the Pulitzer Prize for the collected poems in 1982. तो ये सिल्विया प्लाथ की बायोग्राफी है. नेक्स्ट चलते हैं इसकी जो पोएम है डैडी, उसकी डिटेल समरी की तरफ. तो जो सिल्विया प्लाथ की पोएम है डैडी, ये कॉम्प्लेक्स और एक इंटेंस वर्क है जो नैरेटर की जो डीपली ट्रबल्ड रिलेशनशिप है अपने फादर के साथ उसमें डेल्व करती है, और इसमें थीम्स ऑफ ट्रामा, ऑपरेशन और आइडेंटिटी जो है उनको एक्सप्लोर किया गया है. जो पोइम है वो स्टार्ट किस तरह से होती है कि स्पीकर एड्रेस करती है अपने फादर को एक कन्फेशनल फॉर्म के अंदर, और डिस्क्राइब करती है अपने फादर की ऑप्रेसिव प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, लाइकनिंग हिम टू अ ब्लैक शू, जिसके अंदर शी एज अ चाइल्ड हैज़ फेल्ट ट्रैप्ड, ठीक है, और 30 साल तक वो उससे आज़ाद जो है वो नहीं हो सकी. जो शू का मेटाफर इसने यूज़ किया है ये एम्फोसाइज करता है एक ऐसी ज़िंदगी जो कि कन्फाइनमेंट की है और डिपेंडेंसी की है फादर की अथॉरिटी के अंडर, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब करती है कि रिलीजियसली जो सिग्निफिकेंट है, और उसको रेफर करती है दैट अ बैग फुल ऑफ गॉड. जो स्पीकर की स्टेट है दैट शी हैड टू किल हर फादर दो ही डाइड बिफोर शी हैड चांस टू कन्फ्रंट हिम. इसका मतलब क्या है? वो इन लाइंस के थ्रू ये बताना चाहती है कि उसके दिल में अपने फादर के खिलाफ इतना गुस्सा और नफरत है कि यहाँ तक उसे ये महसूस हुआ कि उसने इसे मार डाला है, लेकिन हकीकत में उसका फादर जो है वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है. और इससे पता ही चलता है कि शायद अगर वो ज़िंदा होता या तो उसको मार देती या उसका मुकाबला करती, ठीक है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका फादर जो है उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है. नेक्स्ट चलते हैं. तो इसमें क्या है कि जो अनरिजॉल्व रिलेशनशिप है वो उसको हॉन्ट करता है, ठीक है, और इसकी इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी और ओवर पावरिंग रहती है. उसको सिंबलाइज किया गया है डिस्क्रिप्शंस के साथ लाइक गास्टली स्टैचू एंड मार्बल हैवी. ये जो इमेजेस हैं सजेस्ट करते हैं कि उसके फादर की गॉड लाइक अथॉरिटी थी और परमानेंस थी उसके इन्फ्लुएंस की इवन आफ्टर उसकी डेथ के बाद भी, ठीक है. वो रेफर करती है फिजिकल बरियल एंड लिमेंट्स द एब्सेंस ऑफ क्लोयर. सिल्विया प्लाथ ड्रॉ करती है एक्सप्लिसिट कंपैरिजन फादर के दरमियान में और नाजी सिंबलिज्म के दरमियान में, ठीक है. वो इमेजिन करती है अपने आप को एक जू के तौर पर और कास्ट करती है अपने फादर को एक ओप्रेसर के रोल में. समवन एसोसिएटेड विद लुफ्टवाफे एंड पेंजरमैन इवोकिंग इमेजेस ऑफ नाजी जर्मनी. लुफ्टवाफे बेसिकली कौन है? ये बेसिकली जो है जो नाजी जर्मनी उसकी एक एयरफोर्स थी वर्ल्ड वार के दरमियान में भी, ठीक है, और वर्ल्ड वार से पहले भी.
ये एक जर्मन वर्ड है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये एयरफोर्स है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और RAF पायलट के लिए इसे एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो रिपीटिशन है इच की, ये इंडिकेट करती है एक स्ट्रगल के वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना चाहती है अपने फादर के अथॉरिटेरियन फिगर के वेट के अंदर, ठीक है, के अंडर। जो रेफरेंस दी गई है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के तरफ और हॉलोकॉस्ट की तरफ, वो लिटरल नहीं है, लेकिन उनको यूज़ किया गया है एक फीलिंग को कन्वे करने के लिए, और वो फीलिंग्स ऑप्रेस्ड, डोमिनेटेड और विक्टिमाइज की हैं बाय हर फादर्स मेमोरी एंड इन्फ्लुएंस। जो पोएम ट्रांजिशंस टू डिस्कस हर अटेम्प्ट टू रिक्रिएट हर फादर थ्रू रिलेशनशिप विद मैन। अब पोएम की जो ट्रांजिशन है कि वो डिस्कस करे अपनी जो अटेम्प्ट्स हैं, उसकी जो कोशिशें हैं कि अपने फादर को रिक्रिएट करे उस इंसान के साथ रिलेशनशिप के थ्रू जिसमें उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो पाई जाती हैं। अब जो स्पीकर है वो इम्प्लाई करती है कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है, ठीक है, जो उसके फादर के जैसा था और उसको वो मॉडल ऑफ हर फादर कह के बुलाती है, ठीक है। ये जो मैन है ये बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटर है और उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है, विच शी लाइकन्स टू एक्शंस ऑफ वैम्पायर। जो प्लाट की लैंग्वेज है वो सजेस्ट करती है कि उसने इंड्योर किया है इस वैम्पायर फिगर को 7 साल के, और इंडिकेट करती है कि एक साइकिल है ऑफ सीकिंग एंड स्ट्रगलिंग अगेंस्ट मेल फिगर्स जो एम्बॉडी करते हैं उसके फादर के ट्रेड्स को। अब एट द एंड ऑफ द पोएम स्पीकर डिक्लेयर करती है लिबरेशन फ्रॉम फादर्स शैडो, स्टेट करती है द ब्लैक टेलीफोन ऑफ एट द रूट, और सिंबलाइज करती है कि उसका डिसीजन है टू सेवर यानी कि तोड़ना द लिंगरिंग इमोशनल कनेक्शन। वो फिर मेटाफोरिकली अपने फादर को एक और बार जो है वो किल करती है और डिस्क्राइब करती है विलेजर्स स्टैम्पिंग ऑन हिम, ठीक है, एक कैथार्टिक रिलीज है उसके कंट्रोल से बाय सेइंग डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रो। वो सिग्निफाई करती है एक डिसिसिव ब्रेक और रिजेक्ट करती है पेनफुल पास्ट को और क्लेम करती है ऑटोनॉमी को, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये थी ओवरऑल जो है पोएम की डिटेल समरी। नेक्स्ट चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। पहला थीम है ऑप्रेशन एंड पेट्रियार्की। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है जो स्पीकर की फीलिंग है ऑफ बीइंग अप्रेस्ड बाय फादर्स अथॉरिटेरियन प्रेजेंस, यानी कि वो कहती है कि अपने फादर की अथॉरिटेरियन प्रेजेंस जो है मैं उससे अप्रेस्ड हूँ, और ये स्पीकर की फीलिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं। एक्सटेंडेड दिस टू पेट्रियार्कल कंट्रोल इन जनरल, यानी कि बाद में अपने हस्बैंड के बारे में बताती है सारा। नेक्स्ट है ट्रामा एंड स्ट्रगल। इट डेल्स इनटू अनरिजॉल्व ट्रामा फ्रॉम हर फादर्स डेथ, ठीक है, और जो चाइल्डहुड में इसको मुश्किलात आई थी उसका इम्पैक्ट, और प्लाथ की जो स्ट्रगल है मेंटल इलनेस के साथ। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एंड लिबरेशन। स्पीकर जो है वो ग्रैपल करती है अपनी आइडेंटिटी के साथ, पर्टिकुलरली अपने फादर की जो इन्फ्लुएंस है उसके शैडो के अंडर, और अल्टीमेटली फ्रीडम जो है वो तलाश करती है उस कंट्रोल से। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.